Dear students, let us start reading the third chapter from section C, Sparrows by K.A. Abbas. These are some pictures of the author K.A. Abbas. The sun was setting behind the mango grove, which fringed the western extremity of the village, when Rahim Khan returned from the fields. Broad and strong despite his 50-odd years, with the plough on his shoulders and driving his 2 oxen, he walked through the main street of the village with a haughty and unfriendly air. The sun was setting. Grove means bag, aam ka bag. Fringe means border. So the sun was setting, and towards the mango grove, Rahim Khan was returning from his fields. How does he look? Very important. These are details to be underlined. He looked broad, very strongly built. Despite his around 50 years old he is, but he doesn't look like that. हल उसने अपने कंधे पे रखा हुआ है एंड अपने 2 बैल जो हैं उनको ड्राइव करता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा है. एंड ही वॉकड विद द हॉटी एंड अनफ्रेंडली स्माइल. हॉटी means rude, unfriendly means again rude. He does not have a very friendly aura. As he approached the chaupal, where a dozen or so peasants were collected for their evening smoke, the hilarious tones of the gossip died down to cautious whispers. It was only when he had vanished round the corner and the heavy tread of his footsteps was heard no more that Kallu, passing the communal hookah to another, remarked, "There goes the hard-hearted evil." To which Nanha, the fat sweet seller, added, "He is getting worse and worse every day." So, as he approached the chaupal is a platform on which village people sit and gossip. तो जहाँ पे लोग अक्सर शाम को बैठ के बातचीत करते हैं. तो वहाँ पे दर्जन भर किसान बैठे हुए थे एंड दे वर एंजॉइंग देयर हुक्का. एंड जैसे ही उन्होंने रहीम खान को वहाँ पहुँचे देखा, द हिलेरियस टोन्स ऑफ गॉसिप, तो उनकी बातचीत का जो टोन थी, हिलेरियस टोन थी, हंसी मजाक जो चल रहा था, इट टर्न्ड इनटू कॉशियस विस्पर्स. कॉशियस मीन्स कॉशन होता है केयरफुल रहना. सो कॉशियस मीन्स धीरे धीरे विस्पर फुसफुसा के ऐसे बात करने लगे वो. तो दे वर टॉकिंग अबाउट रहीम खान. इट वॉज ओनली वेन ही हैड वैनिश्ड राउंड द कॉर्नर, जब तक वो मुड़ नहीं गया वो चुप रहे, कॉशियसली विस्पर करते रहे. एंड जैसे ही वो उसने टर्न लिया एंड उसके हैवी ट्रेड इज़ बेसिकली कदमों की आवाज़, उसके जो फुट स्टेप्स सुनने बंद हो गए, तब कल्लू उसने हुक्का आगे, people used to share hookah those days, so he passed the communal hookah. Communal is again the public hookah which is shared by everybody in the chaupal. So उसने हुक्का पासन करते हुए कहा, वो देखो जा रहा है हार्ड हार्टेड डेविल, वो देखो शैतान कहीं का जा रहा है वो. टू विच नन्हा, अगेन एक और फैट स्वीट सेलर है, मिठाई वाला है जिसका नाम नन्हा है, उसने क्या कहा, ही इज़ गेटिंग वर्स एंड वर्स एवरी डे. हर दिन इसका बिहेवियर बद से बदतर होता जा रहा है. Only yesterday he beat poor Ramu's child for throwing a pebble at his oxen. Ramnath, the officious Zaldar, volunteered further details of Rahim Khan's recent cruelties. And the other day, he very nearly killed my mare for straying into his field. The Zaldar, of course, thought it quite irrelevant to mention that the straying of his mare had been specially planned by his own mischievous sons. So एक तरह से वो चुगली कर रहे हैं उसकी, they are just gossiping about रहीम खान. तो नन्हा भी कहता है कि उसका व्यवहार तो हर दिन बद से बदतर होता जा रहा है. तो उसके बाद रामनाथ जो जैलदार है, ठीक है, ऑफिशियल जैलदार मतलब जो कि गांव का ऑफिशियली उसको जैलदार बनाया गया है. तो ही ऑल्सो वॉलंटियर्ड
he also participated in the conversation and said कि उसने अभी कुछ दिन पहले ही मेरी the other day he very nearly killed my mare for straying into his field. तो उस so I just lost track of the lines. So very nearly he killed my mare for straying into his field. तो एक दिन तो उसने मेरी मेयर, जो कि घोड़ी भी इसको बोलते हैं हिंदी में, तो उसने मेरी मेयर को भी ऑलमोस्ट मार ही दिया था क्योंकि वो उसके खेतों में घुस गई थी. लेकिन जाहिर सी बात है ज़ैल्दा रामनाथ ने ये बताना इररेलेवेंट मीन्स बेकार समझा कि उसकी वो जो घोड़ी है उसको उसके मिस्चीवियस शरारती बेटों ने ही रहीम खान के खेतों में भेज दिया था. स्ट्रेइंग मीन्स उस तरफ उनको भेज दिया उस घोड़ी को, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू बी मिस्चीवियस एंड दे वर ट्राइंग टू annoy रहीम खान. The old grey-haired Patel was as usual the last to open his toothless mouth. तो एक और आदमी है पटेल जिसके दांत जो हैं वो सारे गिर चुके हैं, तो लास्ट में वो बोला एज़ यूजुअल हमेशा की तरह उसके वर्ड्स जो हैं दे वर प्रीफेस्ड बाय अ पायस इन्वोकेशन ऑफ द ऑलमाइटी. तो पायस इन्वोकेशन मतलब इन्वोकेशन होता है बेटा भगवान को याद करना, ठीक है. ऑलमाइटी इज़ भगवान, गॉड. पायस मीन्स पवित्र, होली. सो ही होली इनकैंटेशन उसने शुरू कर दी. पहले तो भगवान का नाम लिया, हरे राम हरे राम. ही मटर्ड, बड़बड़ाने लगा. आई हैव नेवर सीन सच अ क्रूअल मैन. He has compassion either for the child nor for the helpless animal. हरे राम ऐसा क्रूअल, ऐसा क्रूर व्यक्ति मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा. उसके पास किसी के लिए कंपैशन नहीं है. कंपैशन मीन्स दया, काइंडनेस. सो किसी के लिए उसके पास सिंपैथी नहीं है, चाहे वो बच्चा है या एनिमल है. नो वंडर हिज ओन सन्स हैव रन अवे फ्रॉम होम. कोई इसमें शक की बात नहीं क्यों इसके बेटे खुद ही भाग गए घर से. Now underline this portion. This portion tells us that his sons have run away from home. So this paragraph tells us how people have such double face, such dual personalities. तो खुद ही उसको तंग कर रहे हैं. They are mischievously trying to hurt him, trying to annoy him, but they obviously do not want to see that. तो उनको सिर्फ उसका गुस्सा दिखाई देता है. obviously they hate him, but it doesn't mean कि ये सारे जो हमने अभी examples देखे हैं उसकी cruelty के, उसमें इन लोगों का भी कसूर है. The subject of their conversation meanwhile had reached his hut, which almost symbolically stood gaunt and aloof at a distance from the neighboring cluster of houses. अब the subject of their conversation, अब उनकी बातचीत जो है, अब उसकी झोंपड़ी के बारे में बातचीत होने लगी. उसकी झोंपड़ी कैसी है? सिम्बॉलिकली gaunt and aloof. gaunt and aloof का मतलब क्या है? It means very desolate looking, very old looking, very boring looking. aloof means अलग, दूर. तो उसका घर भी बिल्कुल अलग है, जैसे खुद वो लोगों से अलग रहता है वैसे ही उसकी हट भी बिल्कुल अलग है. इट इज़ सिम्बॉलिक. सिंबल क्या होता है बेटा? समथिंग दैट स्टैंड फॉर समथिंग एल्स. तो उसकी जो झोंपड़ी बिल्कुल अलग है वो क्या दिखाती है? उसकी खुद की पर्सनालिटी जो कि बिल्कुल अलग थलग है बाकी गांव वालों से. तो वो बड़े डिस्टेंस पे है फ्रॉम द क्लस्टर ऑफ हाउसेस. तो बाकी क्लस्टर होता है ग्रुप, बाकी ग्रुप ऑफ हाउसेस अलग है और उसकी झोंपड़ी बिल्कुल अलग है. Leaning the plow against the low wall of the house, where is it? Yes. So leaning the plow against the low wall of his house, he proceeded to tie the oxen to a pair of big wooden stakes embedded in the ground just in front of the doorway. Leaning the plow up against the low wall. तो उसने अपना जो प्लाव है उसको
हल को वहाँ रख दिया दीवार के पास, एंड ही प्रोसीडेड टू टाई, और उसने बैलों को भी, वुडन स्टेक समझते हो ना, जहाँ पे बैलों कैटल को बांधने के लिए ऐसे एक अलग से वुडन स्टेक्स बनी होती हैं, तो ज़मीन में भी उनको गाड़ा होता है, बेसिकली लकड़ी के कीले सी होती हैं, तो उसने उस अपने बैलों को वहाँ पे बांध दिया अपने घर के बिल्कुल सामने, डोरवे के सामने। भाई रहीम खान, एन obsequious voice said behind him as he was about to enter the house। जैसे ही वो घर के अंदर आने लगा, obsequious क्या होता है? ओबीडियंट। एकदम से थोड़ी डरी सी ओबीडियंट सी आवाज़ उसको सुनाई दी, भाई रहीम खान। व्हाट इज़ इट? ही ग्रफली क्वेरीड। क्या है? ग्रफली मीन गुस्से से, क्वेरी क्वेश्चन पूछा, क्या बात है? टर्निंग राउंड टू एड्रेस द ओल्ड वूमन। कौन आवाज़ दे रहा था उसको? एक बूढ़ी औरत है, हु हैड कम आउट ऑफ द हाउस नियरेस्ट हिज ओन। तो उसके घर के पास ही रहती है ये औरत, तो वो आके कहती है, रहीम खान। As she hesitated to speak, he fired a volley of questions. What is it? I won't eat you. Why won't you speak? Woman, has your son been arrested again for the revenue arrears? Or has your daughter-in-law delivered another baby? So, जब उस औरत को थोड़ी हेजिटेशन हुई, क्योंकि उसका ऑरा ही ऐसा है, रहीम खान का ऑरा ही ऐसा है, ही इज़ वेरी इजीली एंग्री, ही गेट्स रियली एंग्री वेरी इजीली, तो उसको बड़ी जल्दी गुस्सा आता है, तो वो डर रही है उससे, तो हेजिटेशन में वो बोली नहीं, और तभी ही फायर्ड अ वॉली ऑफ क्वेश्चन। इतने सारे सवाल दाग दिए, क्या बात है, तुम्हें खा नहीं जाऊंगा मैं, बोल क्यों नहीं रही हो तुम, हैज़ योर सन। तो उसके बाद उस पर ऐसे ही उसको हर्ट करने के लिए बातें कहने लगा, क्या तुम्हारा बेटा फिर से अरेस्ट हो गया, पुलिस पकड़ के ले गई उसको, या फिर दोबारा से तुम्हारी बहू ने एक नए बच्चे को जन्म दिया। सो ही स्टार्टेड talking all this nonsense. As he stopped for breath, the woman summoned up all the courage to utter two words, your wife. तो उसने सांस लेने की एक थोड़ा ब्रेक लिया, और तभी उसको थोड़ा summoned courage मीन्स सारा अपना जितनी उसमें हिम्मत थी उस औरत में, उसने इकट्ठी की और बोली, दो ही शब्द बोल पाई, तुम्हारी बीवी has run away. He completed the sentence with a grin. तो कहती तुम्हारी वाइफ, तो उसके सेंटेंस को रहीम खान पूरा करता है, क्या हुआ, भाग गई। ही कम्प्लीटेड द सेंटेंस विद अ ग्रिन। ग्रिन होता है दांत निकालना, हंसना, तो हंसते हुए मजाक में कहता है, क्या हुआ, मेरी बीवी भाग गई क्या। विच ब्रॉडन्ड विद द रियलाइजेशन दैट ही हैड गेस्ड राइट। लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, उसने जो मजाक में गेस किया था वो सही ही था। नो, द वुमन हेस्टिली एक्सप्लेन्ड विद एन अपोलोजेटिक लुक। नहीं, ऐसा नहीं है। अपोलोजेटिक लुक, जैसे कि उसकी वजह से भागी है, वो बेचारी डर रही है और कहती नहीं, ऐसा नहीं है। एंड शी सेड शी हैज़ ओनली गॉन फॉर हर ब्रदर एट नूरपुर, विल बी बैक इन अ फ्यू डेज। कुछ ही दिन के लिए अपने भाई के पास गई है, अभी थोड़े दिन में आ जाएगी। ही फ्लंग बैक एट हर, ओपनिंग द डोर। He knew that his wife would never come back. तो उसको गुस्सा आ गया कि ये झूठ क्यों बोल रही है। उसने बंद कर दिया, अपना दरवाज़ा पटक दिया अपनी झोंपड़ी का, एंड क्योंकि उसको पता था कि उसकी वाइफ कभी भी वापस अब नहीं आने वाली है, जस्ट लाइक हिज 2 sons।